Hello students, welcome to Savani School's distance learning interactive classes. I hope you all are doing well in this pandemic. So students, from today we are going to start our English class and I am your English teacher. And also I hope that you all have purchased your course, you all have purchased your book. This is your English book. And today we will read first chapter of this book. So, all the students, please open page number 7. Today we are going to read this poem named Virtue. As you have seen, virtue means quality. The first chapter of this book is a poem. This is a poem, and the poet or writer of this poem is Mr. George Herbert. Let me tell you something about this poem before I start. The poem Virtue mainly focuses on the fragile and temporary nature of human lives. That means nothing is eternal in this universe. So, firstly we will read whole poem, then we will translate word to word. So students, are you ready? Let's start to read this poem with first stanza of this stanza. Let's start. Sweet day, so cool, so calm, so bright, the bridal of the earth and sky. The dew shall weep thy fall tonight, for thou must die. Now come to the another stanza. Sweet rose, whose hue angry and brave bids the rash gazer wipe this eye. Thy root is ever in its grave, and thou must die. Now, next stanza of this poem. Sweet spring, full of sweet days and roses, a box where sweets compacted lie. My music shows ye have your closes, and all must die. And the last one. Only a sweet and virtuous soul, like seasoned timber never gives, but though the whole world turn to coal, then chiefly lives. So, I hope you all have read this. Now, we will translate word to word of this poem. Now, we will start from very first stanza. Sweet day, so cool, so calm, so bright. Sweet, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुहाना. डे मीन्स दिन है. सो कूल, कूल का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सही, ठंडा. बहुत ही ठंडा. सो काम, काम का मतलब होता है बेटा शांत एकदम. सो ब्राइट, ब्राइट मीन्स चमकीला नहीं बोलेंगे हम बोलेंगे रोशनी से भरा हुआ है. बहुत ही प्यारा दिन है, ठंडा दिन है, शांत दिन है और रोशनी से भरा हुआ है, एकदम उजला सा दिन है. The bridal of the earth and sky. The bridal, bridal means bridal word बना है bride से और bride का मतलब होता है दुल्हन. The bridal of the earth का मतलब हुआ कि बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा हुआ. कैसा दिख रहा है? धरती और आकाश बिल्कुल दुल्हन की तरह सजे हुए दिख रहे हैं. मतलब ऐसा लग रहा है कि धरती और आकाश का मिलन हो रहा है और कोई सेलिब्रेशन हो रहा है. ओके. द ड्यू शैल वीप दाई फॉल टुनाइट. इतना प्यारा दिन है, इतना सुंदर दिन है, पर फिर भी द ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है बेटा? ओस. ओस क्या होता है कि मोस्टली हम लोग विंटर सीजन्स में मॉर्निंग आवर्स में देखते हैं कि पेड़ पौधों पे, प्लांट्स पे कुछ वाटर ड्रॉप्स हमको दिखाई देती हैं. दैट इज़ कॉल्ड ड्यू. ड्यू मीन्स ओस होती है, पर उसके बावजूद, इतने सुंदर दिन होने के बावजूद भी जो ओस है, ओस की बूंद है, वो रो रही है. क्यों रो रही है? दाई फॉल टुनाइट. क्यों? क्योंकि
जिस रात में वो बनी थी वो रात गुजर चुकी है, और अब क्योंकि नया दिन आ गया है तो दिन आने पर वो ओस की बूंद भी अब ख़त्म हो जाएगी, वो भी हमेशा नहीं रहने वाली है, इसलिए ओस की बूंद भी रो रही है। फॉर दो मस्ट डाई, फॉर दो मस्ट डाई मीन्स दो यहाँ पर यूज़ हुआ, दो का मतलब होता है तुम, और यहाँ दो यूज़ हुआ है इस स्वीट डे के लिए। तो भले ही तुम कितने ही सुंदर दिन हो, कितने ही प्यारे दिन हो, जिस तरह ओस की बूंद ख़त्म हो गई, जिस तरह रात गुजर गई, उसी तरह तुम भी गुजर जाओगे, तुम भी ख़त्म हो जाओगे, तुम भी हमेशा नहीं रहने वाले हो। आई होप you have understood these 4 lines. Now we go further. Another stanza of this poem. Let's start. Sweet rose, whose hue angry and brave. Sweet rose, बहुत ही प्यारा सा गुलाब का फूल है। whose का मतलब है जो कि। hue angry, hue angry का मतलब यदि हम word to word translate करें तो गुस्से में होता है, बट गुलाब का फूल गुस्से में तो नहीं होता है ना बेटा। इसका मतलब ये है कि गुलाब का फूल का जो रंग है इतना लाल है, जैसे कि गुस्से में चेहरा लाल हो जाता है, इतना लाल है। एंड ब्रेव, ब्रेव का मतलब बहादुर होता है, बट यहाँ पर हम चमकीला लेंगे, यहाँ पर हम चमकीला यूज़ करेंगे। ब्रेव का मतलब यहाँ पर चमकीला है कि गुलाब का फूल जो कि लाल रंग का, चमकीले लाल रंग का है, इतना सुंदर है। bids the rash gazer wipe his eye, इतना सुंदर है कि ये कोई यदि उसको रैश गेजर मीन्स लगातार देखता रहता है उसको, तो उसकी भी आंखों में पानी आ जाता है। इतना सुंदर फूल है, पर उस इतने सुंदर होने के बाद भी दाई रूट इज एवर इन इट्स ग्रेव, इतने सुंदर होने के बाद भी दाई, दाई मीन्स तेरी या तुम्हारी, है ना। तो तेरी या तुम्हारी का मतलब यहाँ पर दाई यूज़ हुआ है स्वीट रोज़ के लिए, कि उसकी रूट, रूट मीन्स जड़ें भी कहाँ पर है, इन इट्स ग्रेव। ग्रेव मतलब होता है ज़मीन या कब्र, ज़मीन नहीं होता है एग्जैक्टली, ग्रेव का मतलब होता है कब्र, क्योंकि कब्र कहाँ होती है, ज़मीन में ही होती है। तो उसकी जड़ें भी कहाँ पर हैं, ज़मीन में हैं। एंड दो मस्ट डाई, और उसको भी एक दिन ख़त्म होना होगा, भले ही वो कितना ही सुंदर और कितना प्यारा गुलाब का फूल ही क्यों ना हो, जहाँ वो पैदा हुआ है, जिस ज़मीन में वो उगा है, वहीं पर वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इन 4 लाइन्स में पोएट ये बताना चाह रहे हैं कि ब्यूटी भी हमेशा नहीं रहती है, ब्यूटी भी एक दिन ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम अगले स्टैंजा पे चलते हैं बेटा। स्वीट स्प्रिंग फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस। स्वीट स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब क्या होता है बेटा, यस बसंत ऋतु। स्वीट स्प्रिंग बहुत ही प्यारा बसंत का मौसम है। फुल ऑफ स्वीट डेज एंड रोजेस, बसंत के मौसम में आप देखते हैं ना कितने सुहाने और कितने प्यारे दिन होते हैं, और काफ़ी सारे फूल वगैरह भी खिलते हैं। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा दिन है, काफ़ी बहुत अच्छे दिन हैं उसमें, और बहुत अच्छे अच्छे फूल, गुलाब के फूल खिल रहे हैं। अ बॉक्स वेयर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड लाई, एक ऐसा बॉक्स की तरह है वो, वेयर जहाँ पर स्वीट्स कॉम्पैक्टेड, कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है जमा होना, कॉम्पैक्टेड का मतलब होता है जमा होना। ऐसा दिन लग रहा है जैसे कि हमारे हाथ में या हमारे पास एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ बहुत ही स्वीट सी चीज़ें हैं, बहुत ही चॉकलेट्स या बहुत ही मिठाई जैसी चीज़ें हैं। वे स्वीट्स कॉम्पैक्टेड, इकट्ठी हैं वो सारी चीज़ें, बहुत ही प्यारा है। माई म्यूज़िक शोज़ यू हैव योर क्लोजेस, और उस टाइम पर जो मैंने म्यूज़िक बनाया है, जो भी मैंने संगीत बनाया है, एंड ऑल मस्ट डाई, वो सब भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हमारा जो जीवन है, हम इस जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, वो सब काम हमारे साथ ही ख़त्म हो जाएंगे। हमारे ख़त्म होने के बाद कुछ भी हमेशा नहीं चलने वाला है। नाउ कम टू द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल, ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल। सोल का मतलब क्या होता है बेटा, आत्मा।
वर्चुअस मीन्स धार्मिक, नोबल, एंड स्वीट मतलब अभी हम लोग जानते हैं कि बहुत प्यारी और अच्छी. ओनली अ स्वीट एंड वर्चुअस सोल मीन्स हुआ एक अच्छी धार्मिक या नोबल आत्मा. लाइक सीजन टिम्बर नेवर गिव्स. लाइक सीजन टिम्बर का मतलब वो टिम्बर एक लकड़ी होती है बेटा. सीजन टिम्बर मतलब वो लकड़ी जो कि लंबे टाइम से उसको स्टोर किया हुआ हो, और सीज़न में ये होता है कि उस लकड़ी में बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए. वो लकड़ी काफ़ी लंबे टाइम तक रहती है, वो कभी ख़राब नहीं होती है. तो बिल्कुल हमारी आत्मा उस सीजनड टिम्बर, बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो हमेशा रहती है, जो कभी ख़त्म नहीं होती. हमारी आत्मा या हमारे अच्छे काम, हमारे गुण, वो कभी ख़त्म नहीं होते. बट द होल वर्ल्ड टर्न टू कोल. जबकि सारा का सारा संसार, सारी दुनिया टर्न टू कोल मतलब राख में बदल जाएगी. देन चीफली लिव्स. तब भी क्या रहेगा, किस चीज़ का वजूद रहेगा? हमारे अच्छे गुणों का, हमारी अच्छी आत्मा का, हमारे अच्छे कर्मों का वजूद इस संसार में रहेगा. इस कविता से आपने क्या समझा? इस कविता का मतलब हुआ कि हम जो भी कर रहे हैं, हम जो भी काम कर रहे हैं, वो सारे काम सब लोग हमारे जाने के बाद भूल जाते हैं. सब लोग क्या याद रखते हैं? हमारा अच्छा कर्म, हमारे अच्छे किए हुए काम, हमारी क्वालिटीज़ ही याद रखी जाती हैं. तो दैट मीन्स कि हमें हमेशा अच्छे ही काम करने चाहिए. So students, I hope you all have understood this poem. You all have understood the meaning of this poem. If you have any problem, you can text me back and you can ask any question regarding this poem. So now, this is the time for hard words. So students, these are your hard words. These are your hard words. Let's start to read. Look. काम हमने पढ़ा है ना. काम मतलब शांत. ब्राइडल विवाह जैसा, दुल्हन जैसा, जैसे कि सेलिब्रेशन जैसा. ड्यू, ड्यू का मतलब क्या होता है बेटा? ओस. दाय, दाय तेरा. जब हम तेरा बोलते हैं, पोएटिक वर्ड है ये, तो दाय हम तेरा के सेंस में यूज़ करते हैं. दो, दो का मतलब होता है तुम. ह्यू एंग्री, ह्यू एंग्री मतलब गुस्से में लाल, बहुत तेज़ गुस्से में. बिड्स, बिड्स मतलब हम जब कुछ करने का प्रयास करते हैं, कुछ काम करते हैं, ठीक है. रैश गेज़र, रैश गेज़र मीन्स ध्यान से देखना. गेज़ का मतलब होता है बेटा एकदम देखना. तो रैश गेज़र मतलब एकदम टकटकी लगा कर देखना, एक टक देखना. वर्चुअस, वर्चुअस मीन्स धार्मिक या नोबल. So now students, what you have to do now? You have to copy these hard words in your homework copy. I will send you the screenshot of the same, and you have to read the poem again, and you have to read this poem again, and let me know where is the problem. Okay. In the next session of this class, we will discuss about the question and answers of this chapter. Till then, thank you so much. We'll meet soon.